وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ترسنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں longing for. longing for mean ترسنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس longing for پلس ورب پلس ing یا ناون پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for getting a job. He is longing for getting a job. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for meeting you. He is longing for meeting you. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. I am longing for speaking English. I am longing for speaking English. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for a cup of tea. He is longing for a cup of tea. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنے دیر میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in how much time. in how much time mean کتنے دیر میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. in how much time پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ In how much time did you finish the work? In how much time did you finish the work? تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ In how much time will you come? In how much time will you come? وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ In how much time can he read a book? In how much time can he read a book? تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ In how much time will you reach there? In how much time will you reach there? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ میں ٹھیک ہو گیا. چائے ٹھنڈی ہو گئی. پانی گرم ہو گئی. اس کے 2 بچے ہو گئے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس گاٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں ٹھیک ہو گیا ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم ضرور بولتے یا سنتے ہیں. میں ٹھیک ہو گیا. I got well. I got well. چائے ٹھنڈی ہو گئی. The tea got cooled. The tea got cooled. پانی گرم ہو گئی. The water got hot. The water got hot. اس کے 2 بچے ہو گئے. He got 2 children. He got 2 children. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا ہو گیا یعنی کھانا تیار ہو گیا. میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا.
वो तो बस यूं ही गया था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बस यूं ही। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में जस्ट कैजुअली। जस्ट कैजुअली मीन बस यूं ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस जस्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कैजुअली। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने बस यूं ही पूछा था। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। वो तो बस यूं ही आया था। He just came casually. He just came casually. मैंने तो बस यूं ही देखा था। I just saw casually. I just saw casually. वो तो बस यूं ही गया था। He just went casually. He just went casually. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैंने तो बस यूं ही बोला था। पहले मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ। पहले उसकी बारी है। पहले उसे जाने दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पहले। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले मुझे बोलने दो। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट मीन पहले, लेट मी स्पीक ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। दैट मीन मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट मीन पहले, यू गो तुम जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल। पहले उसकी बारी है। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। पहले उसे जाने दो। पहले उसे जाने दो। फर्स्ट लेट हिम गो। फर्स्ट लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। पहले तुम जाओ। पहले तुम जाओ। हम उसे बुलाना जरूरी नहीं समझते। तुमने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो यहाँ आना जरूरी नहीं समझता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड। डू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नोट प्लस कंसीडर प्लस एट नेसेसरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम उसे बुलाना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम। तुमने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। यू डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। यू डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल यू। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल यू। वो यहाँ आना जरूरी नहीं समझता। ही डज नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कम हियर। ही डज नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो वहाँ जाना जरूरी नहीं समझता। वो वहाँ जाना जरूरी नहीं समझता। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। क्या जरूरत थी वहाँ बोलने की। क्या जरूरत थी उसे फोन करने की। क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्या जरूरत थी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड मीन क्या जरूरत थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर।
What was the need to go there? क्या जरूरत थी वहां बोलने की? What was the need to speak there? What was the need to speak there? क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? What was the need to call him up? What was the need to call him up? क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? What was the need to go with him? What was the need to go with him? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अगर तुम्हें आना हो तो मुझे बता देना। जब तुम फ्री हो तो मुझे बता देना। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मुझे बता देना। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे बता देना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट मी नो। लेट मी नो मीन मुझे बता देना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी नो प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर तुम्हें आना हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू वांट टू कम। लेट मी नो इफ यू वांट टू कम। अगर तुम्हें जाना हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू वांट टू गो। लेट मी नो इफ यू वांट टू गो। जब तुम फ्री हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू लाइक हर। लेट मी नो इफ यू लाइक हर। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। आपका जो फैसला हो मुझे बता देना। लेट मी नो व्हाट इज योर डिसीजन। लेट मी नो व्हाट इज योर डिसीजन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसे कैसे यूज़ करना है मुझे बता देना। अचानक टायर फट गया। अचानक लाइट चली गई। अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा। अचानक वो यहाँ आ गया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अचानक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मीन अचानक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ऑल ऑफ सडन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अचानक टायर फट गया। ऑल ऑफ सडन द टायर ब्रस्ट। ऑल ऑफ सडन द टायर ब्रस्ट। अचानक लाइट चली गई। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। अचानक वो यहाँ आ गया। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। अचानक वो चला गया। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। अचानक वो मर गया। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अचानक वो बीमार हो गया। अचानक वो बीमार हो गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।